My dear students and friends, so welcome to our RSB physics class. So this is lecture 1 on oscillation, basically simple harmonic motion, SHM, for your class 11 NEET and JEE. So this is basically theory class. After that there will be a problem set discussion. Okay, so now I will be discussing on why we should study oscillatory motion, why it is simple harmonic and motion. So every phenomenon from atomic to subatomic जो है everything सब जो है in nature in universe there should be in atom ना, there will be a vibration है ना. So atom will be considering just different atom are just considering as spring and their oscillation towards. So when some metal body is hitting, so that atom is vibration and that vibration is itself presenting by a simple harmonic motion. So specific heat, yes, of calculation of a class you will be learning in graduation classes also. But in periodic motion you will be seeing in different planets are orbiting different their stars and everything, just like our earth is rotating around our sun, है ना. So there is a periodic and oscillation and periodic motion. So what is periodic motion? Say a motion that is repeating in a particular regular interval of time. So किसी भी motion अगर regular, so regular interval of time. So if motion repeats है ना, so एक motion ये regular interval of time में अगर repeat हो रहे, so that is called periodic. So our earth is moving around sun. This is our earth and this is sun. So ये move करे, so this is a periodic. So in 365 days it is moving. So 365 days में एक साल होता है ना. So it is moving in 365 days. But this motion is periodic but not oscillatory. Why it is oscillatory term? Oscillatory term I am giving some examples. So there is a bowl and you have a pebble जो है ना, बचपन में गोली खेलते हैं ना. So ये इसको यहाँ से drop कर दिया. So it will come to here and it will here, then after, so for due to gravity it will come again here. So this is the motion. So motion is so something towards equilibrium. So after that you will be stay here, है ना. This is called stable equilibrium, है ना, stable equilibrium. So particle motion will be towards the equilibrium, and that is the properties of simple harmonic motion that I will be coming a little bit later. Okay, so every motion in the is periodic but not oscillatory. But oscillatory motion, every oscillatory motion, just I am giving example 1, example 2. If your mass is spring and this is your body, so if you just stress it, so it will oscillate this type. So इस टाइप का स्प्रिंग इसमें है, अगर इसमें दोनों मास को एक स्प्रिंग से जोड़ देंगे, आप इसको थोड़ा सा दोनों तरफ यू आर जस्ट स्ट्रेचिंग, देन इट विल ऑसिलेट. ऐसा आपने देखा ना, जैसे सितार स्ट्रिंग. सो द मोशन ऑफ सितार स्ट्रिंग, दिस वाइब्रेशन है ना, एक्वास्टिक वाइब्रेशन, दैट विल बी डिफरेंट नोड्स एंड एवरीथिंग. यू विल बी लर्निंग इन ग्रेजुएशन क्लासेस हाउ मच नोड्स, हाउ मच ये समथिंग. Okay, so this types of motion is simple harmonic motion. This is periodic, but all periodic motions are not simple harmonic motion. There is different types of periodic motions and जो है simple harmonic motion, और जो basically आपका जो है simple harmonic motion. So all the simple harmonic motion is periodic, or oscillatory motion is periodic, but not all periodic motion are oscillatory. So not all periodic motion are oscillatory. जैसे अर्थ moves around the sun, so this is not oscillatory, so this is periodic. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सो आप मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल मूव कर रहे हैं ना. सो ये जो बॉल मूव कर रही है, बॉल को आप जैसे इस राउंड में एक मतलब एक पत्थर के लिए आपने वो हाथ से धागा से इसको धागा से बांधा आपने, है ना. इसमें आपका ये हाथ है, ये हाथ में आप इसको घुमा रहे हो. सो दिस इज
पीरियोडिक मोशन। अब इस मोशन को आप ऊपर से देख रहे हो, ऐसा है कि इसमें एक लाइट दिया हुआ है ना। आप इस प्लेन में आप क्या देखोगे, इस प्लेन में दिस इज योर इक्विलिब्रियम। सो इसका लाइट जो है, आप ये मैक्सिमम प्रोजेक्शन, सो प्रोजेक्शन ऑफ एक रोटेशनल मोशन। सो आप क्या देखोगे, ये मोशन इधर जा रहे, सो ये बॉल मान लो ऐसे घूम रहे, सो जैसे इधर था तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, सो ये किया इधर गया, सो मतलब इधर आया, यहाँ गया मतलब इधर आया, इधर गया मतलब इधर आया, फिर यहाँ से इधर गया, सो इधर गया, सो इधर गया तो इधर आया। सो these आर जस्ट रिपीटिंग दिस एंड दिस। सो वन पार्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजिशन के अगेंस्ट जो है मतलब उसके अक्रॉस में ये दिस इज मूविंग here and there. Okay, so this is oscillatory. So if the motion is periodic, but projected light projection on this plane is, this motion is oscillatory. Okay, this motion is oscillatory. So basic difference between oscillator motion and periodic motion understood. Now there is a terminology motion, oscillatory and vibration. So oscillation, when frequency is लेस, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। बट जैसे आप स्विंग जैसे है ना, बचपन में आप देखो जो मम्मा ने आपको झूला में झूला है, सो झूला का जो है बहुत एक सेकंड में एक बार झूलता है, सो दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी। बट व्हेन यू आर प्लेइंग गिटार, सितार एक्सेट्रा, वायलिन, सो स्ट्रिंग इज वेरी, मतलब इज इट दिस वाइब्रेशन। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज high, so what is frequency I am coming here? So frequency is high means vibration. So oscillation and vibration is लगभग same but in difference in frequency. Okay, so now I will be discussing what periodic time period, frequency, amplitude of oscillations and everything, है ना. So let us discuss what is the time period, है ना. The smallest interval of time जो है आपका व्हिच द मोशन रिपीट इटसेल्फ, है ना. सो कितना टाइम के बाद वो मोशन रिपीट कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड जो है टाइम पीरियड, है ना. सो एक आपका जो है झूला का एक एग्जांपल लेता हूँ ना. यहाँ पे आपका मम्मा झूला ये कर रहे हैं ना, आप झूला में ऐसे झूल रहे हो. सो यहाँ जैसे यहाँ से आपने चालू किए, फिर इधर गया, फिर इधर मैक्सिमम हाइट गया, फिर इधर, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर, ये जो टाइम है दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी, है ना. दिस कॉल्ड टाइम पीरियड. सो इतना जो टाइम जो है वन कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम है दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो नाउ फ्रीक्वेंसी इज 1 upon t. So frequency f equal to this is 1 upon t. So its unit is, if it is time 1 upon time, its unit is hertz. So 1 hertz frequency mean 1 hertz frequency mean 1 oscillation per second, है ना. अब एम्पलीट्यूड, है ना. सो लेट्स द टर्मिनोलॉजी. एम्पलीट्यूड, व्हाट इज एम्पलीट्यूड? सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मान लीजिए इतना दूर तक गया, सो ये जो पोजीशन है ये जो है आपका दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ए, है ना. सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, है ना, displacement from equilibrium. Okay, so this is the amplitude. Now I will be basically describing the properties of simple harmonic motion. So what is the properties of simple harmonic motion? जैसे यहाँ पे जैसे झूला का एग्जाम्पल लिया ना, यहाँ से एग्जाम्पल. सो दिस रेस्टोरिंग, सो व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग, मतलब आप जैसे आप ऊंचा गया ना फिर वापस आ रहे, मतलब किस फोर्स में आ रहे? दिस इज देयर इज ए रेस्टोरिंग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. वो आपको वापस ये वाला पोजीशन पे लेके आ रहा है. आप जितना भी आप ऊंचा झूलते जाओ, जितना भी ऊंचा झूलते जाओ, इधर भी जाओ, बट यू हैव टू कम हियर, है ना. सो दिस इज अंडर ग्रेविटी. सो रेस्टोरिंग फोर्स जो है आपका जो है दिस रेस्टोरिंग फोर्स, फर्स्ट जो है रेस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स
इक्विलिब्रियम, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम के पोजीशन में रेस्टोरिंग फोर्स है। एंड जो है रेस्टोरिंग फोर्स अगर ये एफ है, ये दिस इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, है ना। सो यहां से कितना दूर डिस्टेंस है ये इसके साथ प्रोपोर्शनल। सो ए प्रोपोर्शनल टू जो है -x, क्योंकि x कहां से मेजर होते हैं, सो x इज मेजरिंग दिस डायरेक्शन एंड रेस्टोरिंग फोर्स इज दिस डायरेक्शन। सो दोनों का ये है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से। सो रेस्टोरिंग एफ ये जो है ये, सो एफ इक्वल टू माइनस के, दिस इज कॉल्ड ये कांस्टेंट जो है। सो नाउ एफ इज एम ए इक्वल टू माइनस के और ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स और ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना। सो ओमेगा, सो हेयर ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, k is sometime the spring constant, spring के केस में spring constant sometime this है। so this is now, so a is basically acceleration, so displacement v equal to dx dt, acceleration equal to d2x dt। अगर if you are doing the differential equation, it is very simple। so d2x dt2 plus omega square x equal to 0। so this is the basic equation of SHM, है ना। so this is the basic equation of simple harmonic motion। okay, so now let's have a solution। so this is second order differential equation। okay, so this is second order जो है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इट्स सॉल्यूशन, लेट्स ट्रायल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू e टू द पावर mt। सो दिस इज द ट्रायल सॉल्यूशन, है ना। सो ये यहाँ पे बैठा होगा तो क्या होगा, e टू द पावर mt, दिस इज m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू प्लस माइनस आई ओमेगा, है ना। और जो टर्मिनल, सो x इक्वल टू a e टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस b e to the power minus I omega t। So this is the basically solution। So now one properties I am telling, e to the power I theta equal to cos theta plus I sin theta, ये ऊंचे क्लास में सीखोगे, है ना। So cos and sin के टर्म में आप लिख सकते हो, है ना। So now general solution will be x equal to a sin omega t, है ना, और जो है a cos ओमेगा टी, साइन या cos के टर्म में आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। सम टाइम आप फेज भी ऐड कर सकते हो। इनिशियल फेज दिस इज इयर एट t इक्वल टू 0 देयर इज, मतलब ये t इक्वल टू 0 देयर इज इनिशियल फेज 5 मींस जो है ये जो ऑसिलेशन है ये t इक्वल टू 0 से आपका जो है t इक्वल टू 0 में आपका मतलब 0 नहीं है, सम फेज है, मतलब कहीं से मतलब 0 इक्विलिब्रियम से स्टार्ट नहीं हो रहे, है ना। अब कॉस का जो है, अब दिस इज फाई इज इनिशियल फेज, फाई इज इपोक इनिशियल फेज, समटाइम इट इज कॉल्ड इपोक इनिशियल फेज, है ना। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप फाई को 0 भी कर सकते हो। मान लीजिए आप यहां से 0 से चालू हो रहे, सो वो भी आप लिख सकते हो। सो ए साइन ओमेगा टी, so x equal to a sin omega t for sake of simplicity, और a जो है x equal to a cos omega t। अब मतलब at t equal to 0 so there is a, so आप इस टाइप में अगर प्लॉट ये करोगे, so this is your सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है ये आप मान लीजिए ये इधर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, है ना। ये आपका दिस इज योर झूला, और जो है ना
सो ये आप देखते रहोगे, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। सो आप यहाँ से जो है आप x इक्वल टू t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 दैट इज a, सो हियर एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वो बैठा है। सो दिस इज a, मतलब ये डिस्टेंस जो है आपका a। सो मतलब आपका इक्वेशन t मतलब यहाँ से चालू हो रहा है मोशन, मतलब पहले यहाँ से खींच के इधर लाया फिर चालू हुआ, है ना। आप t इक्वल टू 0 में साइन जीरो वाला जो टर्म है, सो व्हेन सी दिस इक्वेशन है t इक्वल टू 0 x इक्वल टू t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, मतलब ये यहाँ से चालू, यहाँ पे स्टेबल है, फिर इसको धक्का लगाया फिर ऑसिलेशन चालू हो। सो इस तरीके से इट मे बी द सॉल्यूशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t और a cos ओमेगा t, बोथ सॉल्यूशन आर वैलिड, ओके, because of e to the power I sin theta equal to cos sin theta plus cos theta plus I sin theta. Okay, so now we will be discussing displacement, velocity and acceleration and their deceleration. So basic equation what we have obtained, x equal to a sin omega t. So what is the velocity? So this is displacement, है ना, displacement, velocity equal to v equal to dx dt. So this is equal to ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, है ना, साइन का डेरिवेटिव है ना। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है, ए इक्वल टू डी टू एक्स डी टी टू, सो दिस इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ओके। सो नाउ दिस इज एक्सीलरेशन, सो नाउ सी द इक्वेशन, सो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इज व्हाट, एक्स ना। सो ये जो है डी टू एक्स डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सो बेसिक इक्वेशन, अगर ये सॉल्यूशन अगर गलत है सो वो मतलब ये तो नहीं आएगा ना। सो दिस ए एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इज द ट्रू मतलब सॉल्यूशन ऑफ एक्स, और एक्स इक्वल टू कॉस में भी सेम होगा, d2x dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो ये सेटिस्फाई कर रहे है ना, ये यहाँ से भी इधर आया, इसका सॉल्यूशन तो हमने पहले ही किया है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज वैलिड इक्वेशन। नाउ अगर सो दिस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ यू कैन राइट, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, है ना। वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी, v इक्वल टू ये है ओमेगा स्क्वायर जो है ओमेगा ए कॉस इज 1 माइनस जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, सो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज सो ओमेगा ए रूट ओवर ऑफ 1 माइनस जो है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना। सो ओमेगा, सो दिस इज सो v इक्वल टू जो है प्लस माइनस अभी लिख सकते हो, ए बाहर आ जाएगा, है ना, ओमेगा रूट ओवर, सो v इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो समटाइम किसी भी पोजीशन पे आपका अगर वेलोसिटी पूछा, सो यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, है ना। किसी भी पोजीशन पे माने वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी हियर, हाउ कैन यू प्रिय दिस, सो इफ यू नो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, एंड a इज द एम्पलीट्यूड एंड इफ यू नो द x डिस्टेंस, है ना, so then velocity can be calculated. So omega is the angular frequency, omega is 2 pi by t. So total जो रोटेशन जैसे है ना, ऐसा है, ये जो है टोटल दिस इज 2 पाई एंगल, है ना। सो भर ये टोटल अगर टाइम पीरियड t, सो ओमेगा इज 2 पाई बाई t और 1 बाई t इज, सो दिस इज राइट 1 into 1 upon t. So omega equal to twice pi 1 upon t means frequency, and this is angular frequency and this is linear frequency, okay, omega equal to 2 pi f, okay. So now let's have a plot, है ना। so हम थोड़ा सा इधर ब्रीफ कर लेता हूँ फटाफट, है ना। so you have to plot what is the displacement, velocity and acceleration in terms of time period. so x equal to a sin omega t जो है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, है ना। आप थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ।
सो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब ये रिलेशन आपको एस्टेब्लिश हुआ. सो नाउ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जो है डिस्प्लेसमेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दिस इज ग्राफिकल, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना. सो आप इधर एक एक्सिस दे देता हूं, है ना. सो दिस इज योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिस. सो एक, दो, and here it is 3. Okay, so this is time period, है. थोड़ा सा बराबर ड्रॉ कीजिए आप, हैं. आप मान लीजिए दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्स, है ना. एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. सो दिस इज टोटल टाइम पीरियड, दिस इज t/4, दिस इज t/2, 3t/2 एंड दिस इज t. टोटल टाइम पीरियड में, है ना, जो है यहां से, मतलब यहां से मान लीजिए यहां से इधर जाके इधर, दिस इज टोटल t, वन टाइम पे, वन कंप्लीट ऑसिलेशन. सो यू हैव टू प्लॉट. सो ओमेगा टी, सो t इक्वल टू t/4. तो साइन ओमेगा टी में ये बैठाइए, है ना. सो ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा आपका, ओमेगा इक्वल टू ट्वाइस पाई पर टी एंड टी इक्वल t/4, है ना. ये कट गया. दिस इज इक्वल टू π/2. सो साइन 90 इसमें जो है मैक्सिमम होगा, है ना. सो ये आपका मैक्सिमम होके इधर आएगा. फिर ये मैक्सिमम कितना होगा आपका, दिस इज एम्पलीट्यूड ए एंड हियर मान लीजिए आपका एम्पलीट्यूड दिस इज माइनस ए, है ना. सो ये आपका मैक्सिमम होके इधर. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ साइन. साइन जो है, साइन ये वेव जैसे बोला है ना, जैसे समुद्र में लहरा आते हैं ना. सो दिस इज जस्ट लाइक वेव इन योर सी, है ना. सो इस टाइप का जो है वेव, साइन वेव का. इनिशियल में 0 इन x equal to 0, x is the displacement. Okay, now similarly you have to plot for omega a cos omega t. So at t equal to 0 it will be omega a. So यहाँ पे मान लीजिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये जो है वेलोसिटी, है ना. वेलोसिटी में यहाँ पे दो ले लीजिए, दिस इज योर ओमेगा ए मैक्सिमम जो है, और माइनस ओमेगा ए हो सकता है ना, एंड दिस इज योर माइनस ओमेगा ए, है ना. इनका बीच में ऑसिलेशन होगा, है ना. सो अब ओमेगा ए से, सो मैक्सिमम जो है एक्स टी इक्वल टू 0, दिस इज ओमेगा ए कॉस 0, है ना, 1. सो यहां से जो है आपका चालू हो रहे, ये इधर से 0 हुआ पाई में, फिर इधर मैक्सिमम हुआ, दिस इज द प्लॉट. अच्छा, ये मैक्सिमम इधर होगा, है ना. थोड़ा सा आपको ड्रॉ करना है, इसमें ये मैक्सिमम होगा इस पोजीशन पे, ठीक है. सो t/2 बैठा दीजिए, ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी. सो 2π/t एंड दिस इज t/2, है ना. ये काट गया पाई, है ना. पाई माइनस जो है माइनस ओमेगा, इसमें ये होगा. और जो है ओमेगा स्क्वायर है. सो ये देखिए साइन वेव जैसी होगा, बट ये चालू हो रहा है क्या, माइनस से, है ना. सो ये यहाँ पे अगर प्लॉट करेंगे, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है, और ना सॉरी, ये ओमेगा स्क्वायर है, और इधर जो है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर है समवेयर एल्स, है ना. सो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर से मतलब जो है टी इक्वल टू 0 में ये 0 हो रहे, है ना. सो ये जो है टी इक्वल टू 0 में साइन 0 0, फिर जो है मतलब इधर से चालू होगा, ये इधर से चालू होगा, फिर इधर मैक्सिमम होगा, ठीक है. साइन वेव का जस्ट हो. अच्छा, ये इधर ये एक्सिस है ना, थोड़ा सा ध्यान से ड्रॉ कीजिए, इतना हड़बड़ नहीं करने का, है ना. ये इधर से जाके एंड दिस वन, ठीक है. सो ये दिस इज इधर मैक्सिमम होगा, ठीक है. सो ये साइन वेव का, है ना. ये वाला जो साइन वेव उल्टा साइन वेव का, जैसे ये वाला साइन पहले ऊंचा था,
ये पहले नीचा था फिर ऊंचा हुआ, तो इसका जस्ट रिफ्लेक्शन बैक है ना। तो इस तरीके से यू कैन बी एबल टू प्रेजेंट, है ना। ठीक है, अभी जो डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ टू लीनियर एसिजम। लीनियर कोलिनियर एसिजम मतलब दिस फ्रीक्वेंसी इज सेम, जैसे x इक्वल टू a, जो x1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड x2 इक्वल टू a जो है सिर्फ एम्पलीट्यूड डिफरेंस है b साइन ओमेगा टी, है ना। सो अब इसका दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी, सो x टोटल जो है रिजल्टेंट जो है इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू a प्लस b साइन ओमेगा टी। सो हाउ कैन यू प्रेजेंट दिस इन ग्राफिकली, इन ग्राफिक। सो इफ दिस इज योर a, मान लीजिए ये आपका b और ये आपका a प्लस b, है ना। सो दिस इज सिमिलरली a माइनस b और दिस इज योर माइनस जो है a प्लस b। ओके, सो आपको जो है ए प्लॉट ये करना है ना। सो दिस इज एम्पलीट्यूड है a साइन ओमेगा टी। सो a साइन ओमेगा टी, सो दोनों का जो है सेम, इसमें सेम फेज में है, सिर्फ एम्पलीट्यूड डिफरेंस है। सो मान लीजिए एक आपका इधर होगा, ये आपका इधर होके ये होके, बस दिस इज योर फर्स्ट x1 and then what will be your x2, this is your x2 माइनस b and this is, है ना। अब दोनों मोशन के एक साथ ऐड करेंगे तो इनका सबका इंडिविजुअल जो है ऐड हो जाएगा। तो ये जाके जो है इंडिविजुअली ये a प्लस बी, दिस वन एंड दिस इज योर a माइनस बी। सो रिजल्टेंट को मैं थोड़ा सा मोटा करता हूँ। सो दिस इज योर रिजल्टेंट, है ना। सो ये अब अगर मान लीजिए ये जो है एक पाई फेज डिफरेंस है इसके साथ, जी मान लीजिए एक ये जो है एक पाई फेज डिफरेंस है ना इसके साथ। सो ये क्या होगा आपका, सो दिस विल बी, ये क्या होगा आपका x रिजल्टेंट होगा x प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, है ना। जो है इधर हो जाएगा माइनस होगा ना। सो a माइनस बी साइन ओमेगा टी, है ना। सो x2 क्या होगा, x2 इक्वल टू माइनस बी साइन ओमेगा टी, है ना। सो आप यहाँ पे सिमिलरली आपको ड्रॉ करना है, सेम थिंग, है ना। सेम थिंग आप कैसे ड्रॉ करोगे, इधर आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा सा आप स्पेस ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, है ना। तो ताकि आसान रहे, ग्राफ आपको दिख जाए अच्छे से, ठीक है। सो आपको क्या होगा, ए बी और जो है तो मान लीजिए ये आपका ए थोड़ा सा बड़ा करता हूं, दिस इज योर ए, दिस इज योर जो है आपका बी, ये भी आपको थोड़ा सा ए थोड़ा बड़ा करता हूं ए, और ये आपका जो है दिस इज वन योर बी एंड ए माइनस बी समवेयर इन बिटवीन एंड हियर योर ए माइनस बी, है ना। ये थोड़ा सा ए माइनस बी, ओके। देखिए ए एम्पलीट्यूड से ये नेगेटिव हो रहा है। सो दिस इज योर इनिशियल मोशन, ये कहाँ है इधर, दिस इज ए। सो यहाँ से बी माइनस होगा, है ना। बी कौन सा है, माइनस, है ना। सो बी माइनस में मतलब यहां से चालू हो रहे हैं, ये आपका बी। सो ये रिजल्टेंट से ये माइनस होगा, सो हर एवरी पॉइंट से ये नेगेटिव होगा। तो इफेक्टिवली आपको ए माइनस बी जो है आपका ये सो दिस इज ए माइनस बी इन समवेयर इन बिटवीन। सो दिस इज द रिजल्टेंट, इसको मोटा कर रहा हूं, है ना। ये मोटा वाला। सो ए यहाँ से बी, ये वाला पोर्शन नेगेटिव हो रहे, है ना। सो ये नेगेटिव करने के बाद ये आपका रिजल्टेंट जो है। सो इस तरीके से यू कैन बी ग्राफिकली, मतलब अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच सिंपल, है ना। नाउ लेट्स कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, सो एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे कैलकुलेट करोगे,
So there is a velocity, है ना? So there is a velocity means there is a kinetic energy. Always there is a kinetic energy, and when it is going upwards, so there is a potential energy, है ना? So अब इधर इसको यहाँ पे ये करता हूँ और ये आपका मोशन है ना. सो अब ये जो क्या था आपका x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, है ना. सो वेलोसिटी क्या था आपका जो है ओमेगा ए साइन, साइन की जगह में कॉस होगा, कॉस ओमेगा टी. और ये क्या था वेलोसिटी इक्वल टू जो है v इक्वल टू जो है ओमेगा, ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, प्लस माइनस ये वन माइनस जो है, वन माइनस जो है ये हो जाएगा, है ना. कॉस ओमेगा टी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये पहले किया था ना. सो ये कट गया. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू जो है कितना होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज योर kinetic energy. Now what is the potential energy? So here restoring force is force F. So F equal to minus omega square x. ये acceleration था ना, acceleration. So F equal to minus m omega square x. So ये इधर and work आप यहाँ से आप इसको खींच के इधर x distance ले जाने में कितना वर्क होगा, इसके अगेंस्ट में हो रहे हैं ना. So this work is positive. So work done is d omega equal to, so now this is potential energy calculation. d omega equal to जो है आप इसके अगेंस्ट में काम हो रहे तो इट्स ओके m omega square ये into dx. this is force into जो है this is force into displacement x. so this is work done. so total work will be, work done will be stored. यहाँ से ऊंचा, जैसे एक पत्थर का हम ऊंचा कर रहे हैं, so against gravity कम करें, so this work done is positive. so कितना height, so this is mgh. so mg is the basically gravitational force and h height आप ये कर रहे हो, है ना. so similarly जो है आपका ये इतना फोर्स इंटू ये सब टोटल x डिस्टेंस तक ले जाने में, छोटा छोटा जो है आपने dx यहाँ पकड़ा था ना, ये छोटा dx ले जाने में एक डिस्टेंस में. सो m ओमेगा स्क्वायर x dx इसका इंटीग्रेशन, ये आप थोड़ा बाद में सीखेंगे ये क्या है, क्योंकि छोटा छोटा वर्क डन मतलब यहाँ से इधर ले जाने में कितना dx ले जाने, छोटा डिस्टेंस ले जाने में कितना वर्क हुआ ये. अब यहाँ से x तक जाने में मतलब 0 to x. सो इसका जो है ये आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर जो है ये नहीं हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2. सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2. एंड इसका जो है x का इंटीग्रेशन जो होगा x और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 जो है कितना है डी डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 ट्वाइस एक्स. सो दिस इज इक्वल टू x, है ना. अब डी ऑफ, अब नाउ अब यहां से इसको थोड़ा सा इरेज करते, सो अगर इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको आसान हो रहेगा. डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स डी एक्स. अब इसका इंटीग्रेशन होगा, सो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट लाइक जो है आपका ये अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज 1/d, इस तरीके से ये काट जाता है, हालांकि ऐसा नहीं कटता है ना. ठीक है. सो अब ये काट गया. सो इसका जो है इसका इंटीग्रेशन होगा आपका जो है इसका जो है ये आपका एक्स स्क्वायर बाई 2. सो एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2. सो बेसिकली x to the power n plus 1 by n plus 1. So integration, this is the general formula of x to the power n dx equal to basically है ना. उसमें ये था n minus 1 डिफरेंशिएशन का केस में, है ना. तो ये थोड़ा सा उल्टा है ना. सो ये आपका जो है थोड़ा इरेज कर दिया है ना. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड जो है पोटेंशियल एनर्जी, इसको थोड़ा सा
पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या आ रहा है, P इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर, है ना। सो नाउ ऑल आई एम इरेजिंग इट। सो थोड़ा सा यह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इक्वल टू के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. So total energy doesn't depend on this x term, so because it depend only on this amplitude. Maximum amplitude बहुत ज्यादा होगा, so आपका total energy of the simple harmonic motion is वो जो है more the more is the amplitude, the more will be the total energy. Okay, so now if you plot it, oh again I am erasing it. So if you plot it, so can you plot here? Here I can plot it. So plot here है ना. So आपका जो है काइनेटिक एनर्जी, सो ये एम्पलीट्यूड मान लीजिए, दिस इज ए एंड दिस इज ए. सो स्क्वायर जो है एक्स इक्वल टू, यहां से आपको दिख रहे हैं ना, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, है ना. सो काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट होगा, सो एक्स इक्वल टू, दिस इज योर अलोंग द डायरेक्शन एक्स एंड दिस इज योर एनर्जी, है ना. ये मान लीजिए आपका टोटल एनर्जी ई टोटल एनर्जी कितना है, हाफ एम जो है, इसका नीचे लिखता हूं इधर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी, है ना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर. सो इसका जो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में ये मैक्सिमम. सो काइनेटिक एनर्जी जो है, ग्राफ जो है आपका ये होगा, ओ थोड़ा सा साइन टाइप का होगा, उल्टा साइन का. नो ये है ना, ये दिस वन, दिस इज परफेक्ट. ओके, सो नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, है ना. सो एक्स इक्वल टू जीरो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इसका टोटल एनर्जी, है ना. सो किसी भी टाइम, और पोटेंशियल एनर्जी का जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा, एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स ये पोटेंशियल एनर्जी, ये एक्स इक्वल टू जीरो एंड दिस इज एक्स इक्वल टू ए, है ना, ये मैक्सिमम पोजीशन. सो एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी जीरो. सो इसका जो कर्व होगा ये इधर होके ये इधर आएगा, है ना. आप देखिए, ओहो, इसको अगेन आई हैव टू ड्रॉ स्मूथली, है ना. सो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना. सो एक जगह में देखिए दोनों दिस ग्राफ आर क्रॉसिंग ईच अदर, है ना, दिस पोर्शन. सो व्हाट समटाइम दिस क्वेश्चन इज कमिंग, when at which amplitude the kinetic energy and potential energy are same, both same कीजिए. so half m omega square a square minus half m omega square x square equal to potential energy half m omega square x square potential energy. so इन दोनों ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, है ना. so x equal to a over root 2. So this x and this portion is a amplitude over root 2, where both kinetic energy and potential, here potential energy equal to kinetic energy. and किसी भी टाइम आप देख लीजिए, ये आपका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जो आपका बिल्कुल ही जीरो, है ना. तो इन दोनों का ऐड करेंगे किसी भी टाइम में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, इसका इज द टोटल एनर्जी. अब इस पोजीशन पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी जो एकदम ये में, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा, मतलब जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के डॉट डॉट वाला जो कर्व है, so here it is half m omega square square. so this is the total energy and this is constant throughout the motion, है ना. so इस टाइप का एक प्रॉब्लम आ सकता है. so just think and not mugging, just you understand the theory, then you will be able to question the answer. ठीक है, पढ़ते रहिए. थैंक यू.